Very good morning, students of class 10th. I am Poonam Prasad with your economics, chapter number 3, money and credit. Here the today's topic. The today's topic is related with the credit situation in our society. Credit with two different situations, that is the negative and positive. It means the two faces of the same coin. So in our earlier classes, we came across with the numerous of the aspects correlate with the you can say with the money. Like we have started a journey with the definition of money, then the barter system, then the need of the money, then barter system. Barter systems, it's demerit, right? Then it comes to the evolution of money, then the characteristics of money, then it comes to the functions of money. Fine. Then we came across with modern form of currency. Fine. In that we came across with the mode of payment, like for example check. We have explained the demand deposits. Then we have came across with the role of RBI, that is the Central Bank of India, Reserve Bank of India, in the perspective of India as a example. Then the various aspects of we came across with the RBI, that is the banking system, you can say. Fine. The procedures of the banking system, or you can also said about the banking mechanism. Now in today's class, we are dealing with the credit, children. Credit means the loan here. We are talking about the loan and the positive and negative aspects of the loan with examples, with the case studies, right? So students, the first slide shows about the definition of credit. It means that what is a credit, or we have to define the credit, because this particular topic is very, very, very important and very promising topic of your according to the board of this chapter. जैसे बार्टर सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा, वो एक इम्पॉर्टेंट था, डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट, उसी तरीके से हमारे यहाँ पे जो ये क्रेडिट्स है, क्रेडिट basically the topic is correlated with the credit and various other aspects of this जो हम लोग later on पढ़ेंगे. So we are dealing with this. Fine. So first of all, we have to go for the definition. Children, what is, we have to define the credit. Children, credit or loan, it is an agreement. It is an agreement. Children, this is a very, very important thing, that is agreement. We are talking about agreement in which there is the two person. One is a lender. It means who lends the loan to the borrower. It means who supplies the borrower. वो borrower को क्या देते, that is the money, the goods or the services, and in return उनको क्या मिलता है, the promise of future payment. The promise of future payment. Yes student, this is about the credit. You have heard also कि जब हम लोग किसी से लेते हैं ना कि हमने ये कॉपी ली, फॉर एग्जाम्पल अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, एक डे टू डे लाइफ से ही जुड़ा हुआ एग्जाम्पल है. एज अ स्टूडेंट आप लोग को हम बता रहे हैं कि जैसे होता है ना कि कॉपी लिया, हमने कॉपी लिया कि हम आपको कॉपी ले जा रहे हैं, हम आपको कल देंगे. ठीक है, काम करने के लिए, होमवर्क करने के लिए हम कॉपी ले रहे हैं, हम आपको कल देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे दो लोग हैं, कॉपी, एक तो जो दे रहा है और एक जो कॉपी ले रहा है. तो जिसने कॉपी दिया उसने ये कहा मुझे कल देना, और जिसने कॉपी लिया उसने कहा हाँ मैं आपको कल दूंगा. इट मीन्स हियर दिस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू पर्सन. हियर इन द क्रेडिट सिस्टम the agreement is in between the lender who lends the money or the goods or the services to whom? To the borrower. There is a two person. There are a two person here. The one is lender as well as the another one is the borrower. Is that clear, students? Are you getting my point? Fine. Then we come across with, can the credit become a positive or negative, or how can we say that the credit is two faces of the same coin? Fine. अगर हम ये कहें कि क्या क्रेडिट, चिल्ड्रन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, दैट क्रेडिट इज़ अ ह्यूमन राइट. एक्चुअली हम डे टू डे लाइफ में भी
कभी ऐसा नहीं कि हम कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने जैसे कहा, वस्तुओं की भी हो सकती है, सेवाओं की भी ज़रूरत हो सकती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा मनी, है ना। तो चाहे वो हर तबके का व्यक्ति क्यों ना हो, वेदर इट कैन बी द पुअर, वेदर इट कैन बी द मिडिल क्लास, वेदर इट कैन बी द रिच पीपल, कहीं ना कहीं जब पैसे की ज़रूरत, हम यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो समटाइम्स जो ये क्रेडिट है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो हियर इट इज़ टू इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है। दो केस स्टडी दिया हुआ है और दोनों केस स्टडीज़ पे हम लोग बात करेंगे। सो देर इज़ अ टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन हियर। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसकी क्लैरिटी, अगर इसमें क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं आपको अलग से इसका दूंगी, एक पिक्चर खींच के इस केस स्टडी का, ठीक है बेटा। तो इसको समझने की कोशिश करना कि दिस इज अबाउट अ केस स्टडी ऑफ फेस्टिवल सीजन, दिस इज अ फर्स्ट वन हियर। हाउ इस केस स्टडी को समझने के बाद यू पीपल डिसाइड वेदर द क्रेडिट इज टर्म टू बी द नेगेटिव और द पॉजिटिव फॉर अ पर्सन, फाइन। सो लेट्स वी हैव द फर्स्ट वन। इट इज़ अ फेस्टिव सीजन, festival season है, 2 months from now, and a shoe manufacturer, there is a name of the shoe manufacturer is here, Salim. He received an order from a very large trader in a town for 3,000 pairs of shoes to be delivered in a month time. एक महीने के अंदर अंदर 3,000 pairs of shoes has to be ready from a side of a Salim who is a shoemaker, and he get this sort of you can say order from a very large trader, fine, of a town, और उसको कितना मिला 3,000 रुपीज़। लेकिन जो काम वो शूज़ को बनाने के बाद उसकी डिलीवरिंग पॉइंट क्या है, ओनली अ मंथ। सो टू कंप्लीट प्रोडक्शन इन अ टाइम, क्योंकि हम जब तक ये बिज़नेस में होता है कि अगर हमने किसी ने हमसे कहा है कि आपको बनाना है, ये आपका हम ऑर्डर दे रहे हैं और ऑर्डर आपको टाइम पे, तो टाइम पे ऑर्डर पहुंचाना, ये सबसे बड़ा एक कमिटमेंट होता है फ्रॉम द साइड ऑफ एनी person who are involved in any sort of business, fine. So to complete the production on time, a person, it means a shoemaker Salim, has to hire a few more workers for stitching and pasting work. उनको और ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत है, ज़्यादा हैंड्स की ज़रूरत है, वर्कफोर्स की ज़रूरत है, ठीक है। ज़्यादा वर्कर मीन्स ज़्यादा सैलरी। ही हैज़ टू परचेज, इसके लिए अब उनको सामान चाहिए था, दैट ही हैज़ टू परचेज अ रॉ मटेरियल। सो टू मीट दीज एक्सपेंसेस, क्योंकि रॉ मटेरियल इनिशियली उनको चाहिए 3,000 रुपीज़ 3,000 पेयर्स ऑफ शूज़ को बनाने के लिए उनको रॉ मटेरियल चाहिए। तो ये जो खर्चे थे, चाहे वो अपने कारीगर को देने के लिए, अपने वर्कर्स को देने के लिए, या रॉ मटेरियल को ख़रीदने के लिए, सलीम ऑब्टेन लोन्स फ्रॉम 2 सोर्सेस। उन्होंने लोन्स लिया 2 सोर्सेस से। वन, फर्स्ट ही आस्क्ड द लेदर सप्लाई, उन्होंने लेदर सप्लायर से कहा टू सप्लाई द लेदर नाउ, अभी आप मुझे लेदर दे दीजिए, मैं आपको पेमेंट आधा दूंगा और आधा बाद में दूंगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे हाफ का नहीं है, लेकिन हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि उन्होंने, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक भी पेनी उन्होंने लेदर मैन्युफैक्चरर सप्लायर को ना दिया हो। सेकेंडली, उन्होंने ही ऑब्टेन लोन इन कैश फ्रॉम अ लार्ज ट्रेडर, जिसने दिया था ऑर्डर एज एन एडवांस पेमेंट फॉर 1,000 पेयर ऑफ शूज़, और उन्होंने साथ ही साथ जिस व्यक्ति ने उनको जो ऑर्डर दिया था उससे उन्होंने 1,000 शूज़, उनको बनाने कितने थे 3,000, लेकिन उन्होंने 1,000 शूज़, पेयर्स ऑफ शूज़ का एडवांस ले लिया था इस प्रॉमिस के साथ कि वो पूरा का पूरा सामान सही समय पे ऑर्डर करेंगे बाय द एंड ऑफ द मंथ,
Is that clear? At the end of the month, Salim is able to deliver the order, make a good profit, and repay the money that he had borrowed. जो उन्होंने हाफ मनी जैसे लेदर से लिया है ना, और क्योंकि वर्कर्स को तो उनको डेली देना था, डेली वेजेस पे था या 3 days के बाद था, वो एज पर द कमिटमेंट होता है फ्रॉम द साइड ऑफ द वर्कर, एक ही एग्रीमेंट होता है फ्रॉम द साइड ऑफ द वर्कर एंड द एम्प्लॉयर. फाइन, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स के बीच में जो एक था वो एक डिफरेंट इशू था. लेकिन उनको ये पता था कि हम एक चीज़ को रोक सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, और वो क्या था? रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द लेदर सप्लायर. तो उन्होंने लेदर सप्लायर से रॉ मटेरियल लिया, हाफ अमाउंट उनको पे कर दिया, और जैसे ही उनको प्रॉफिट मिला, उस प्रॉफिट में से जो बच रहा था लेदर मैन्युफैक्चरर को, वो उसने उठा के उनको दे दिया. इस तरह से इन दिस केस सलीम ऑब्टेन्स द क्रेडिट टू मीट, उन्होंने जो कर्जा लिया था to meet the working capital needs for the production, because he needed that capital for the production. That capital is termed to be working capital. You have already heard in the chapter number 1 of your class 9, in your class 9, right? Economics. You have already heard about this. The fixed capital and the working capital. The credit helps him. By this, the credit helps him to meet the ongoing expenses of production में complete production on time, and by this उन्होंने समय पे दिया अपना ऑर्डर, सही तरीके से दिया. यहाँ पे वर्कर्स भी खुश हुए, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल सप्लायर था वो भी खुश हुआ, और अल्टीमेटली उनका एक फेथ बना कि नहीं, लेटर ऑन हम इनके साथ बिजनेस कर सकते हैं. और अल्टीमेटली जो क्रेडिट था यहाँ पे, वो इट प्लेज अ वाइटल and positive role in this situation. Is that clear, student? यहाँ पे जो क्रेडिट था वो पॉजिटिव रहा. ठीक है बेटा. नेक्स्ट हम लोग इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे. दिस इज अबाउट द नेगेटिव. कैन क्रेडिट बी नेगेटिव एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉर अ पर्सन? अगर हम सलीम का केस स्टडी देख रहे हैं तो कैन बी द क्रेडिट प्लेज नेगेटिव इन वंस लाइफ, है ना बेटा? ऋण लेना या कर्ज लेना अपने में ही एक बहुत बड़ा, हम कहते हैं कि बहुत सारे लोग इससे बचते हैं. हमारे पिताजी हमसे कहा करते थे कि लाइफ में नेवर एवर टेक लोन्स. आप पैसा जमा करके कोई सामान खरीदो, इट्स बेटर ऑन, बट डोंट टेक द थिंग्स और द गुड्स लोन में मत लो, है ना? क्यों? क्योंकि कर्जा कहीं ना कहीं एक जंजाल बन जाता है. और आपने सुना होगा कि इंडियन पर्सपेक्टिव में इंडियन वो फार्मर्स हैं, वो अपने वो सुसाइड करते हैं. जो सोसाइटल केस है उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो है डेप्थ ट्रैप. और किस वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्रेडिट. So credit can be negative in an economic activities for a person अगर एक चाहता है तो. Yes, let's we have to see in the second case study. बेटा, Swapna is a small farmer. She grows groundnut on her 3 acres of land. You have clearly picturized है ये. She take a loan from the money lender. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, the word is here money lender, साहूकार, to meet the expenses of cultivation. So she take loan from money lender, hoping that her harvest should help to repay the loan that she has taken from the money lender. Midway through the season, the crop is hit by pest and the crop fails. A very pathetic situation for the farmer. Though Swapna sprays her crop with expensive pesticides, it makes little difference. She is unable to repay the money lender, and debt grows over the year
into a large amount. Next year, Swapna take a fresh loan for cultivation again from the moneylender. It is a normal crop this year, but the earnings are not enough to cover the old loan that she has taken from the moneylender. So she is caught in debt. It means debt trap. She caught in debt trap. She has to sell a part of land to pay off the debt. This is true बेटा, ऐसा होता है. एक किसान स्वप्ना, उन्होंने वो अपने 3 एकड़ भूमि में उन्होंने मूंगफली की खेती की. और मूंगफली की खेती करने के लिए जैसे जो बेसिक है, जैसे जाए वो बीज के लिए, क्योंकि हमारा किसान, जो भारत का किसान है, वो उतना वो रिच नहीं है. अगर हम बात करें तो इनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी वास्ट नहीं है, साउंड नहीं है. तो उन्होंने मनी लेंडर से, गांव के मनी लेंडर साहूकार से उन्होंने कर्ज लिया. चूँकि वो, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो इलिटरेट थे, फाइन, तो उन्होंने लिया. और ध्यान दीजिएगा, मनी लेंडर से उन्होंने लिया और लेने के बाद उन्होंने जो अपनी खेती की वो किया, बट ये सोचकर कि मेरी अच्छी फसल होगी और जो पैदावार से मुझे प्रॉफिट या मुनाफा मिलेगा उससे मैं रिपे कर दूंगी किसको, साहूकार को. बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, उस साल जो कीड़ों की वजह से भारी तबाही हुई. अभी हमारे देश में भी इसका अटैक हुआ था. जो टिड्डे है ना, टिड्डी बिल, जो टिड्डे दल आए थे, उन्होंने टिड्डे दल उन्होंने उठा के हमारे इलाहाबाद में भी आए थे, प्रयागराज में, और उन्होंने फसलों को नुकसान पहुंचाया था. तो अल्टीमेटली ये एक पेस्ट, एक बहुत बड़ा एक होता है, नेगेटिव एस्पेक्ट होता है कि उन्होंने खेती तो की, बट खेती का जब उनको रिजल्ट मिलना था, दैट वाज फेल. और उस साल वो क्रॉप जो था वो फेल हो गया. चूँकि सपना ने बहुत अच्छा पेस्टिसाइड छिड़काव किया था, एक्सपेंसिव था, बट उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ. अब चूँकि उनका जो खेती थी वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गई, पैदावार उनकी हुई नहीं, पूरा फेल हो गया. और अल्टीमेटली शी वोंट बी एबल टू रिपे द लोन टू द मनी लेंडर. वो शी वॉज नॉट कैपेबल, वो उनके पास पैसा नहीं था जिससे कि वो ऋण अपना चुका सके जो उन्होंने साहूकार से लिया था. ठीक है बेटा. फिर जब नेक्स्ट ईयर आया, चूँकि उनका लाइवलीहुड ही क्या था, कल्टीवेशन, उन्होंने फिर मनी लेंडर से लिया फ्रेश लोन. अभी उनका पुराना बाकी है, उन्होंने फ्रेश लोन लिया, बट अल्टीमेटली क्या हुआ बेटा, फ्रेश लोन भी उनका उस साल खेती हुई, अच्छी हुई, लेकिन उस पैदावार से इतना मुनाफा नहीं हो पाया जिससे कि वो अपने पुराने लोन को चुका सके. हुआ क्या, धीरे धीरे वो सपना डेप्थ ट्रैप यानी ऋण के जंजाल में फंसती चली गई. और लास्टली उनको उस ऋण को पे करने के लिए अपना जो 3 एकर्स में से 1 एकड़ हैज़ टू बी पे ऑफ एज अ डेप्थ. उनको ऋण चुकाने के लिए उनको अपनी ज़मीन को बेचना पड़ा. इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे जो सपना की प्रॉब्लम है वो क्या है बेटा, दिस इज़ कंसिडर्ड एज अ लोन इन अ नेगेटिव मैनर. So in rural areas, the main demand for credit is crop production. If we are talking about रूरल इंडिया में, ऐसे भी खासकर इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो क्रेडिट किस लिए लिया जाता है, फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन. और क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सीड्स की ज़रूरत है, फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती है, पेस्टिसाइड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सेट्रा. सो द फार्मर्स जितना वो इनपुट लगाते हैं, समटाइम्स वो आउटपुट नहीं मिल पाता. So they has to take a crop loan at beginning of the season and repay the loan after the harvest.
रिपेमेंट ऑफ लोन इज क्रूशियली डिपेंड ऑन इनकम फ्रॉम फार्मिंग, क्योंकि इसी से लोन पूरा चुकता किया जा सकता है। अगर क्रॉप अच्छी हुई तो लोन चुकाया जाएगा, अगर क्रॉप अच्छी नहीं हुई तो क्रॉप कैन बी वो क्रॉप फेल हुआ तो लोन नहीं चुकाया जा सकता है। सो दस वी कैन से हियर इन दिस सिचुएशन the credit in this case pushes the borrower into a situation from which the recovery is totally very painful. ठीक है बेटा, यहाँ पे क्रेडिट ने स्वप्ना के सिचुएशन को इम्प्रूव करने के बजाय उसके सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स बना दिया। फाइन बेटा, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इट एज द एग्जाम्पल ऑफ डेप्थ ट्रैप। आई होप स्टूडेंट्स आपने दोनों के स्टडीज़ को पढ़ा और देखा किस तरीके से द लोन यू कैन से द क्रेडिट कैन बी यू कैन से पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव ऑफ योर it can be positive as well as the negative. Fine. Students, if we are talking about some terms here of credit, हमने अभी लोन पढ़ा, लोन के definitions पढ़े और लोन की दो situations पढ़ी, the positive and the negative. अब एक बड़ा ही क्वेश्चन आता है, 1 marks का क्वेश्चन आपके पास, what are the different terms of credit actually? Students, जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि लोन क्या है, इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू, दैट इज़ द लेंडर एज वेल एज द बोरोवर। और यहाँ पे जो टर्म्स इस्तेमाल होते हैं जैसे प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, टाइम हो गया, कोलेटरल्स हो गए, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या हो गया, पेपर वर्क, यू कैन से पेपर वर्क इन विच, जैसे आज के डेट में आधार है या पैन कार्ड है या बैंक स्टेटमेंट्स हैं, दीज आर कंसिडर्ड एज अ डॉक्यूमेंटेशन। आपके घर का जो निवास स्थान यानी कि योर रेजिडेंशियल होम एड्रेस है, आपके गारंटर्स हैं, दैट आर द टर्म्स यूज्ड इन द क्रेडिट। मोड ऑफ रिपेमेंट, हाउ कैन अ बोरोवर रिपे द अमाउंट, वेदर इट कैन बी फ्रॉम चेक और इट कैन बी कैश, किस तरीके से रिपेमेंट होगा, दैट टर्म्स आर यूज्ड इन द क्रेडिट while we are lending money or while we are borrowing the money. So यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है what are the different terms used in the credit, तो आपका आंसर होगा that is your principal amount, then interest rate, collaterals, documentation, mode of repayment, all year, fine, time is there. So these are termed to be the terms of credit. Students, there is a one word here and the word is correlate with the collateral, that is collateral, जिसको हम लोग कहते हैं, pronunciation it's collateral है. Collateral is what? This is a very very important term here. Collateral is an asset, children. This is an asset that the borrower owns, like borrowers के पास होता है, like land vehicles is there, livestock is there, some FDs, that is fixed deposits in a bank is there. This is uses by the borrower and this is a guarantee to a lender until the loan is repaid. बेटा यहाँ पे एक वर्ड और आ रहा है, that is called as, आपके ज्वेलरीज भी होते हैं। समटाइम्स हमने जो खरीदा है ना, हमने लोन लिया और उस लोन के एवज में आप लोगों ने मुथूट फाइनेंस के बारे में सुना होगा, गोल्ड फाइनेंसेस है ना, कि आप कर्ज लीजिए और उसके बदले में आपके पास जो सोना रखा हुआ है, आप अपने हिसाब से कितना आपको कर्ज लेना है उतना आप बैंक के पास लोन डिपॉजिट करिए, जिसको हम लोग गोल्ड लोन्स भी कहते हैं। ठीक है बेटा, सो दिस इज़ अबाउट द ज्वेलरी और दिस इज़ अबाउट द एसेट दैट अ बोरोवर इज़ हैविंग। सो बोरोवर के पास क्या है, यही एसेट है ना। जैसे कि स्वप्ना के पास एसेट क्या था बेटा, स्वप्ना के पास ज़मीन ही थी, तो जब उसका रिपेमेंट नहीं हो पाया
तो उसने अपनी ज़मीन को उठा के बेच दिया, है ना बेटा. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड इट एज अ कोलैटरल. सो कोलैटरल is very very important in the loaning activities, children. It is very important in a loaning activity. Question arises that why the lender asked for the collateral. लेंडर को क्यों ज़रूरत है? बोरोवर के पास तो है ही है, लेंडर को क्यों ज़रूरत है? जब लेंडर को लोन मिल रहा, लेंडर ने लोन दिया है और उसके एवर्स में उसने प्रॉमिस लिया है फ्रॉम द साइड ऑफ द बोरोवर कि हाँ मैं फ्यूचर में इसको पे कर दूंगा, तो उसके बाद उनको इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है बेटा? डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क तो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन कोलैटरल शुड बी देयर. ये कोलैटरल जैसा हमने ऑलरेडी कहा, ये एक ऐसा एसेट है जो कि बोरोवर के पास है और उसके एवज में ही उसको लोन मिलता है. क्यों मिलता है या लेंडर क्यों कोलैटरल की बात करता है? द लेंडर आस्क्स फॉर द कोलैटरल बिकॉज समटाइम्स और अनफॉर्चुनेटली if the borrower fails to repay the loan, borrower is unable to pay the loan, then the lender has a right to sell the asset or the collateral to obtain the payments, student. This is very very important. Right to sell the asset or collateral. एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने लोन लिया बैंक से और बैंक ने मुझे जैसे बेटा हम लोगों ने एक सीधा सा एग्ज़ाम्पल हम ले रहे हैं कि हमने हाउस लोन लिया और बैंक ने हमें लोन दिया, लेकिन आपको पता है या शायद नहीं होगा कि बैंक ओरिजिनल पेपर्स जो है, रजिस्ट्री के ओरिजिनल पेपर्स जो होते हैं, बैंक उसे अपने पास रखता है जब तक कि जो बोरोवर है, यहाँ पे लेंडर कौन हुआ? बैंक, है ना. बोरोवर क्या हुआ? फॉर एग्जांपल मेरे को बैंक से अपने घर खरीदने के लिए लोन लेना था. मैंने 40 लाख लोन लिया बैंक से और 20 लाख 60,000 का मेरा 60 लाख का मेरा घर है जो मैं खरीदने जा रही हूँ. 40 लाख मैंने किससे लिया? बैंक से. 20 लाख मेरे पास था तो मैंने डाउन पेमेंट किया और 40 लाख मैंने लोन लिया. कहाँ से? बैंक से, है ना बेटा. अब उस कंडीशन में क्या हुआ? उस कंडीशन में बैंक जो होगा, मेरी रजिस्ट्री वगैरह सारी हो गई, मैंने घर ले लिया, लेकिन जब तक बेटा मैं पूरा पैसा, एक एक पैसा मैं बैंक को ना चुका दूं, तब तक जो इंटरेस्ट मेरा बन रहा है वो मैं ना चुका दूं, तब तक बेटा बैंक मुझे ओरिजिनल रजिस्ट्री के पेपर नहीं देंगे. डुप्लीकेट रखेंगे, सब चीज़ रखेंगे. दैट आई हैव टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाउस टैक्सेस और व्हाट्सोएवर जो मेरी अपनी ड्यूटीज़ है वो तो मैं वो मैं करूँगी, लेकिन मेरी ओरिजिनल रजिस्ट्री की पेपर्स किसके पास होंगे? बैंक अपने पास रखेगा. और जिस दिन मेरा कंप्लीट हो जाएगा लोन, उस दिन वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे के मुझे ओरिजिनल जो है, क्या नाम है, रजिस्ट्री, वो मुझे सबमिट कर देंगे. इन केस अगर मैं किसी कारण से नहीं पे कर पाती तो उस केस में रजिस्ट्री उनके पास है ही है और वो मेरे घर को सेल आउट कर देंगे. और वो सेल आउट कैसे करते हैं? वो उसकी नीलामी करते हैं. ठीक है बेटा. सो ये एक डिफरेंट इशू है, बट हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम कोलेटरल्स क्यों हैं कि इन केस अगर बोरोवर किसी कारण से अगर अगर जो प्रिंसिपल अमाउंट और जो इंटरेस्ट रेट है वो नहीं चुकता कर पाता, तो उस कंडीशन में लेंडर का ये पूरा राइट है कि उसके द्वारा दिया गया जो कोलेटरल है, उस कोलेटरल को बेचकर वो अपना रीपेमेंट कर सके, अपना जो पेमेंट है उसको वो रिलीज़ कर सके. इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स? फाइन. सो आई होप आपको ये पोर्शन कंप्लीट समझ में आएगा. हम लोग इसी लोनिंग एक्टिविटी को कल कंटिन्यू करेंगे फिर द फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर्स और वाई ये फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर सोर्सेज ऑफ क्रेडिट क्या है. ठीक है, किसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की
So let's we have that portion tomorrow in tomorrow's class. So children, by this you have to revise, you have to watch this video, you have to revise the chapter or the topic as well, and you have to write down the notes that I am going to provide you. Fine, till then students, goodbye.